Good morning, respected chairman of the college, HOD of Physiotherapy department, respected teachers, and my dear friends. Today we all are gathered over here to celebrate a most important department of the medical science, Physiotherapist Day. If we are celebrating Physiotherapist Day, then at least we should know what is physiotherapy, because what we think about physiotherapy, that is not totally true. It's something different. If the question arises in our mind, who is physiotherapist? Then answer will be there, the doctors whom visit we for the movement of our body. But it's not totally true. Nowadays, physiotherapy is required in every field. There is no any medical treatment which is totally recoverable without physiotherapy. So, physiotherapy they started it 460 BC. In 1951, the foundation of physiotherapy are legally established in the world. In 1996, the day is declared on 8 September. It will be celebrated as a Physiotherapist Day. So, in 2023, the theme of the Physiotherapy Day is the illuminating arthritis. Arthritis is a disease. In today's scenario, every age, the human being related to every age is suffering with arthritis. Now again questions will arise in our mind, what is arthritis? It's a normal pain phenomenon of the body joint. But if we will talk about arthritis, then it has many categories. For example, last year physiotherapy department has celebrated osteoarthritis as a theme of the Physiotherapist Day. This year, the arthritis, rheumatoid arthritis and spondyloarthritis is the theme of the Physiotherapist Day. If we will talk about the rheumatoid arthritis, it mainly happens just because of your immune system. Weakness of immune system causes rheumatoid arthritis. And at the same time, if we will talk about the history of the physiotherapy, then already I told you it has been started from 460 BC, a very long time. Physical culture is used as a prophylactic and therapeutic agent in various diseases. Even in ancient time, was used for the health promotion exercise sauna. Sauna words denote the bath, taking bath in the warm water. Now it's a miracle. Water is also treating the disease, and it's only applicable in the physiotherapy. It was by the different countries from the ancient time. For example, in the ancient India, China, Egypt, many more. They use this technique for bed joint mobility used by the stretching, massage and water therapy. Ancient Indian surgeon Sushruta, he was one of the famous surgeonists of the ancient India. In his practice, applies physical exercise. He used to apply in his each and every surgery or treatment. Every time he applied physiotherapy, because he knows very well about the physiotherapy. So the main motto of the celebrating physiotherapy day is to awareness, spread awareness. At least people should know what is physiotherapy, how we should recommend physiotherapy. There is numbers of disease in your body which is not fully recoverable without physiotherapy. Might be if someone has spinal injury, then it will be treated by the orthopedics or the surgeon through the operation. But if you got nerve injury, then it is not possible to recovery without the physiotherapy. So it is the most important field of the medical science. Today we will, the student of our college who is the department of physiotherapy will present a poster in front of you and they will explain their poster one by one. Now I would like to poster presentation. First I would like to call Mr. Rohit, present your poster. Hi. Now I would like to request Rohit, please introduce yourself in front of our students. मेरा नाम रोहित कुमार है।
बिहार पैरामेडिकल में कोर्स कर रहे हैं। 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मेरा कोर्स बीपीटी फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स है। इसके रिगार्डिंग हम एक पोस्टर पर रिटेंशन कर रहा हूँ। सीधा करो। हो जाएगा। वहाँ पे जाएगा। थीम बताना पोस्टर का, ठीक है। जैसे हो गया ये मेरे पूरा बॉडी जिस जॉइंट पे पेन होता है उस जॉइंट का नाम है। जैसे नेक पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया, जैसे नेक पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया, नी पेन हो गया। जो भी मेन जॉइंट है उस जॉइंट के बारे में मैंने इस पर एक्सप्लेन किया हूँ। और इधर हो गया कि मेरा जो फिजियोथेरेपिस्ट का जो होता है, फिजियोथेरेपिस्ट का जो वर्क होता है, फिजियोथेरेपिस्ट जब कोई पेशेंट डिजीज में होता है और वो फिजियोथेरेपिस्ट लेना चाहता है, उसके बाद उस पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा किस टाइप से उसको हेल्प किया जाता है, उसको चलाने में या उसको मोबिलिटी या उसको अपना पिछले के फंक्शन को फिर से प्रिपेयर करने में। थैंक यू। Next in the series we have Miss Anupriya. Welcome on the stage. First, she will elaborate her views in front of you about the physiotherapy. This is your very happy World Physiotherapy Day. Good morning, respected teachers and my dear friends. Today I am Anupriya is here with my thoughts and presentation on World Physiotherapy Day. World Physiotherapy Day is celebrated on 8th September every year. It began in 1951. The day is celebrated to raise awareness about the physical therapist and chronic pain therapist that help people to stay fit and healthy. Physiotherapy is not only for joint pain, but it also helps in injuries and injury preventions like post-surgical recovery, chronic headache, autism, Parkinson's disease, urinary incontinence, diabetes, etc. Now I would like to show you our body parts with the help of diagram where and for what we apply for treat our body's deformities, disorders and disease. Now today's theme is eliminating arthritis. Logo is World. This symbol denotes the logo of the World Physiotherapy Day. Now, physiotherapy helps you enhance quality of life, relieve pain, restore mobility, and regain functions, improve strength and balance. Next in the series, we have Miss Akanksha. Akanksha, welcome. Good morning, respected chairman, teachers, and all my dear friends. I wish you all a very happy World Physiotherapy Day. I am Akanksha Sagar, student of physiotherapy first semester. Today I am here to give you all a brief information about physiotherapy. I am going to tell you about when the Physiotherapy Day declared, why we celebrate it and its benefits. Because I have seen so many people who didn't know about physiotherapy. I would like to spread some awareness with my speech.
towards physiotherapy treatment. Physiotherapy Day, declared on September 1996. Also on 8 September, World Physiotherapy was founded in year 1951. This day is dedicated to all the doctor therapists who give their all effort to their patients till they not get physically and mentally fit properly. Doctors make their patients first priority. Now I would like to represent my poster about physiotherapy, benefits and why it is important. The benefit of physiotherapy is it improves our coordination, balance and strength. It improves our breathing, cardiovascular functioning system and endurance. It also helps in pregnancy, promotes calm feeling, reduce pain and so on. Now I am showing the different types of physiotherapy. The sport physiotherapy, geriatric physiotherapy, cardiovascular physiotherapy, neurological physiotherapy, pediatric physiotherapy, and orthopedic physiotherapy. Thank you. Next in the series, we have Mr. Ved Prakash for poster presentation. Good morning, respected teacher and everyone. My name is Ved Prakash. I am Department of Physiotherapy. Now I will present his poster in front of you. मैं अभी जो भी करने वाला पोस्टर से रिलेटेड करने वाला हूँ। पहले रिव्यू हो रहा है, आपको यहाँ मोबाइल चलाते होंगे, आगे कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, इसके बारे में आप ज़्यादातर अगर मोबाइल चलाते होंगे, इस पोस्टर में चलाते होंगे, इसके बारे में चलाने वाले आदमी में को देखे होंगे, वो जल्दी खड़े रहते हैं, कितना जल्दी खड़े रहेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, चलते हैं उनका पोस्टर सही रहता है, जिस कारण उनको प्रॉब्लम नहीं होता। आदमी के जनरेशन के हिसाब से आप लोग जो मोबाइल चलाते हैं तो गर्दन झुका के चलाते हैं, वो एकदम पर पोस्टर है, गर्दन झुका के कभी नहीं चलेगा। यहाँ से आपको ना कंप्रेशन होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है, मतलब फिटनेस होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। दूसरा बैठना कैसे आज जो डायग्राम में आप देख रहे हैं बेड पोस्टर है, यानी कि आपको कभी भी ऐसे नहीं बैठना है। दूसरा भी आपका बेड पोस्टर है, एकदम ऐसे भी नहीं बैठना है, इसलिए एकदम पीछे सपोर्ट लेके एकदम स्टेबल में बैठिए। खड़ा कैसे रहना है और तो ऐसे खड़ा रहता है, ये कोई पोस्टर नहीं है, खड़ा रहने का सही और तो ऐसे खड़ा रहता है, यही सही नहीं है। इससे आपका जो एंटीग्रेविटी मसल है वो इफेक्टेड होते हैं, इससे आपका मसल का स्पार्क बनना स्टार्ट हो जाता है और आपको स्ट्रेंथ क्लियर होने स्टार्ट हो जाता है। Now I'll explain some disease and condition about the physiotherapy with the help of my poster. There are some normal disease with which
people are more suffering in worldwide. For example, if we will talk about the cardiorespiratory, there is a vast number of patients of cardiorespiratory in the world. If we will talk about the treatment with the surgery and medicine, the treatment of medicine is somewhere it is limited. If you are taking medicine, then you have to be taking your long life. But once you are applying physiotherapy, then it will be more effective treatment for the cardiorespiratory. There is a various category in the cardiorespiratory. For example, if you are suffering with asthma, then medicine will reduce your volume, but it has some limitation. But if you are applying physiotherapy, then it is more chances to reduce the volume rather than medicine. If you are suffering with a hypertension, then it's a normal thing. If your blood circulation is regular, your heart will be rhythmic condition, then you will feel with a hypertension. And how it will happen? How it comes? How it happens? It's not possible with the medicine. You can make your blood circulation in every time rhythmic and in a proper manner. But if you are doing daily exercises, if you are applying physiotherapy on your body, then it is possible to make your blood circulation in a proper manner. Next, if you are suffering with angina, again related to heart disease. Next, heart attack, common disease. In every second, there are numbers of persons who are dying with a heart disease. If treatment of heart disease will be possible with the medicine, or it should be possible with the medicine, then we can save the life of the number of people who are dying with a heart disease. But there are maximum number who is not applying physiotherapy for the heart disease. But if you will apply, or you will tell someone, or you will spread awareness about this condition, about this technique, then definitely it will not at zero, but definitely some number of dying with the heart disease will be reduced. Here, next we have the pneumonia, bronchitis. Almost all the diseases are related. Some signs and symptoms will be same in all the diseases. If we will talk about the orthopedic, then it is the mostly totally dependent on the physiotherapy, because suffering with the orthopedic disease, joint pain, or if you get fracture in your joint, your joint has weak, rigidity, stiffness, then there is no single medicine who can treat it permanently. But if you are applying physiotherapy, then it may be you will get more relief than medicine. Next, we have neurological condition. In every neurological condition, you require physiotherapy. You need physiotherapy. If you are suffering with a neurological condition, CBA or spinal injury or any kind of, if you are talking about psychiatric even, in a psychiatric also physiotherapy is required. First in the beginning I told you, now there is no limited physiotherapy at the joint movement, gait. It used to be in the past. Physiotherapy is about the joint movement, your body locomotion, your gait, but it's not totally true. It is applicable. Physiotherapy has started with this type of topic, with this point, but in today's scenario, in every medical field, in every medical treatment, it requires. You will not fully recover after the surgery or after your treatment without physiotherapy. Now I would like to sum up my view by saying some single line. Medicine adds day in your life, but this technique, physiotherapy, adds life in your day. Thank you and have a nice day. Now I would like to call Dr. Aditya, HOD of the department, to say some few words in front of you, and at the same time he will also cover what is the scope of physiotherapy. So welcome on the stage, sir, please. Good morning, dear chairman sir, dear teachers and my dear students. आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के दिन आप सभी को शुभकामनाएं।
आज ये दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में अवेयरनेस को लेकर, ताकि आप सभी फिजियोथेरेपी को के प्रति जागरूक हो पाए। सबसे पहले 1951 में फिजियोथेरेपी डे का एक संगठन बना था और उस दिन को हम 1996 में इस डे के लिए 8 सितंबर 1996 को ये डे सेलिब्रेट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में सारे फिजियोथेरेपी का एक एसोसिएशन बना, जिसको हम लोग WCPT के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिजियोथेरेपी एसोसिएशन। तो बात जब भी फिजियोथेरेपी की होती है तो लोगों के मन में बस एक ही धारणा आती है कि मूवमेंट, एक्सरसाइज ही फिजियोथेरेपी है। आज के दौर में फिजियोथेरेपी की ये भ्रांतियां उससे भी बहुत आगे चली गई हैं। अभी फिजियोथेरेपी सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है। फिजियोथेरेपी आज ICU से लेकर और एक कोमा पेशेंट तक भी वर्क कर रहा है। अगर बात करते हैं फिजियोथेरेपी के ये इवोल्यूशन की, तो जैसे जैसे बढ़ता गया फिजियोथेरेपी, सबसे शुरुआत में फिजियोथेरेपी बस सीमित दायरा था कि हम काम करते हैं जहां दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। जब पेशेंट हॉस्पिटल से रिटायर हो जाते हैं या फिर किसी भी फ्रैक्चर्स के बाद, किसी भी पैरालिसिस के बाद जब दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तब फिजियोथेरेपी का रोल है। लेकिन अब धारणा चेंज हो चुकी है। अब फिजियोथेरेपी किसी भी ऑपरेशन से पहले, अगर वो पर्सन हेल्दियर नहीं है, अगर उस पर्सन का फिजियोथेरेपी नहीं हुआ, तो वो ऑपरेशन के बाद सक्सेस रेट उसका कम हो जाएगा। मतलब चांसेज होंगी कि उसका ऑपरेशन जो भी हुआ वो उतना सक्सेस नहीं हो पाएगा। ऑपरेशन से पहले भी बॉडी का हेल्दियर होना ज़रूरी है, ऑपरेशन के बाद रिकवरी पीरियड भी उसका लॉन्ग पीरियड हो जाएगा अगर वो पहले से फिजियोथेरेपी सेशन नहीं लिया है। तो इसीलिए आजकल फिजियोथेरेपी प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव दोनों केसेज में काम आ रही हैं। रही बात, आजकल एडवांस में फिजियोथेरेपी के बहुत से टेक्निक्स आ चुके हैं, जैसे कि अब अगर नॉर्मल डिलीवरी होगा, रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन प्रेगनेंसी की अगर बात कर ले हम, तो नॉर्मल डिलीवरी अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए एंटीनेटल एक्सरसाइजेज जो फिजियोथेरेपी के अंदर है वो बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं। मतलब हम 90% आपको 95% अगर फिजियोथेरेपी सेशन आप ले रहे हो तो आपको इस बात की श्योरिटी होगी कि आपका सी सेक्शन डिलीवरी नहीं होने देंगे। वो फिजियोथेरेपी पेल्विक फ्लोर मसल्स, बैक मसल्स, इन सब पे बहुत बेहतरीन रोल निभाता है। अगर बात करते हैं अगर किसी भी पेशेंट का फ्रैक्चर्स के बाद कॉम्प्लिकेशंस का, तो फ्रैक्चर के बाद जितने कॉम्प्लिकेशंस आते हैं आपको ऑर्थोपेडिशियन बताते हैं कि ये प्लास्टर लगाइए, कट गया है। इन सब के बाद बहुत से कॉम्प्लिकेशन आते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लिकेशंस की बात कर ले तो उसमें माल यूनियन होता है। माल यूनियन इन द सेंस होता है कि वो अच्छे से नहीं जुड़ा। क्रॉस यूनियन मतलब गलत तरीके से जुड़ गया। तो इन सब के बाद दोबारा से ऑर्थोपेडिक आपको फिर सर्जरी के लिए बोलेगा या फिर आपको फिर बोलेगा कि प्लास्टर कटाइए, फिर से प्लास्टर लगवाइए। लेकिन आप उस समय अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेंगे तो शायद आपका रिकवरी बिना किसी प्लास्टर के और बिना किसी वो सर्जरी के दोबारा से हो पाएगा। फिजियोथेरेपी ऑर्थोपेडिक में रोल बहुत सारी बातें हैं, अभी कुछ बच्चों ने बताया पेन के लिए वेरियस ज्वाइंट। हर साल फिजियोथेरेपी का ये जो होता है आपका सम्मेलन, फिजियोथेरेपी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, हमारा वर्ल्ड फिजियोथेरेपी एसोसिएशन हर साल कुछ नया थीम देता है, सेलिब्रेट करने के लिए एक टॉपिक देता है। इस बार का वो टॉपिक है कि प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस बहुत से ज्वाइंट्स में होते हैं। यहाँ अर्थराइटिस इन द सेंस होता है, अर्थ मतलब ज्वाइंट, ग्रीक वर्ड अर्थ का मतलब ज्वाइंट होता है और आइटिस यानी इन्फ्लामेशन। तो टर्म अर्थराइटिस किसी भी ज्वाइंट के इन्फ्लामेशन को दर्शाता है। अर्थराइटिस वैसे तो सारे ज्वाइंट्स में होते हैं, बट जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, जो ऑटो इम्यून डिजीज है, हमारा इम्यून सिस्टम जिसमें वीक होता है, वो मेनली आपको छोटे छोटे ज्वाइंट्स को सबसे पहले इफेक्ट करता है। जैसे फिंगर्स हो, रिस्ट हो, एल्बो हो, इन सब ज्वाइंट को वो इफेक्ट करता है। तो सबसे बड़ी बात कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस की कोई विशेष या कोई बेहतर दवाइयाँ आजकल नहीं बनी हुई है। अब तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, ऑटो इम्यून डिजीज के लिए नहीं बनी हुई है। वहाँ हम जितना हो सके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और ये काम इकलौता सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी के जरिए ही हो सकता है। अब तक पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को पूरी तरह ठीक कर दे। बट वो कंडीशन जहाँ पे है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में नोड्यूल्स बन जाते हैं छोटे छोटे जॉइंट्स में, मूवमेंट लॉस हो जाता है पेशेंट्स का,
तो उस कंडीशंस में फिजियोथेरेपी एक बेहतर रोल निभाता है और हम उस पेशेंट को डेली लाइफ एक्टिविटी के लिए तैयार रखते हैं। मतलब जितना उसका एडीएल है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, किसी चीज़ को पकड़ना, गिलास का पानी पकड़ना, कंघी करना, शॉर्ट का बटन लगाना, या फिर जो भी काम है डेली लाइफ के, वो सब हम उसका मेंटेन करते हैं विथ मूवमेंट, विथ इक्विपमेंट और विथ गेट पैटर्न, विथ पोस्चर। गेट पैटर्न इन द सेंस चलने का तरीका वो हम सही करते हैं, पोस्चर उसको बैठने का कैसे सिट टू स्टैंड होना है, वो सब चीज़ें। और अब तक ऑटो इम्यून डिजीज में कोई विशेष दवा, सिर्फ एंटीबायोटिक और बाकी दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी एक बेहतर रोल निभाता है। और भी बहुत से फील्ड्स में फिजियोथेरेपी का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए और फिजियोथेरेपी डे के बारे में सेलिब्रेशन करने के लिए आप सब एकत्रित हुए। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। हम चाहेंगे कि हमारे संतोष सर कुछ वर्ड फिजियोथेरेपी के बारे में बताएं। Thank you, sir. Definitely, your words will appreciate our students and our society, and at the same time, your words will move ahead our faculty physiotherapy. Might be, if I'm not wrong, now you all are at least some new things knows today. This is the benefit of the celebrating any day. If you are celebrating physiotherapy day, OT day, pathology day, MLT day, this is the most benefit of the day. We get to know something new rather than our syllabus. We get to know how it is applicable in our society. At which point we can go with this field, we can go with this course, what we can achieve. So now I request, please have a once again huge round of applause for our participation who has presented their poster in front of you. इनके लिए एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। अब मैं संतोष सर से गुजारिश करूंगा, सर मंच पे आए। बाकी बच्चा को आप समझ रहे हैं क्या सुनना चाहता है, वो लगा दीजिएगा। माइक अपने पास तो था ही, तो यहाँ लगा लें। हाँ, मुझे पता है क्या सुनना चाह रहा है बच्चा हमसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उपस्थित हमारे डायरेक्टर सर, जो हर ऐसे जागरूकता प्रोग्राम को प्रोत्साहन देते हैं, इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। सर का कहना है जो भी डे हम लोग मेडिकल में सेलिब्रेट करते हैं वो हमारे यहाँ सेलिब्रेट होना चाहिए, और होता भी है। और यहाँ पे उपस्थित हमारे जितने भी वरिष्ठ गुरुजन हैं, मैं उनको तहे दिल से प्रणाम करता हूं सबसे पहले, और इनके लिए एक विशेष ताली होनी चाहिए। और हमारे बच्चे जिन्हें कुछ जानने का जुनून है, आपको भी यहाँ आकर के जो आपने अपना अनमोल समय दिया, समय तो अनमोल होता ही है, उसके लिए भी आप अपने लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। अपने लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। देखिए, आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। ये भौतिक चिकित्सा जो है दुनिया में वरदान बन के आया है। मेरी कौन सी लाइन शेर बन जाए मुझे खुद नहीं पता चलता। ये भौतिक चिकित्सा दुनिया में वरदान बनकर आया है। चिकित्सा क्षेत्र में अपना
परचम खूब लहराया है, न शैल्य हुई न दवा हुई, न शैल्य हुआ, शैल्य मतलब सर्जरी, न शैल्य हुआ न दवा हुई, रोगी को उसके पैरों पे दौड़ाया है। ज्यादा दिन नहीं बीता, आप अभी गुजर रहे थे कोविड काल में। सर, कोविड काल में जो फिजियोथेरेपी का रोल रहा है, आदित्य सर आपके बताए होंगे, कोविड काल में फिजियोथेरेपी जो है रोगियों को उसके मौत से मुंह के छीन करके बचाया। इसमें जो चेस्ट का कुछ स्पेशल थेरेपी होता है, ये आप लोगों को पता होगा जो फिजियोथेरेपी में है, तो कोविड काल में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। ऐसे हमारा भी रोल था फिजियोथेरेपी, ये कोविड काल में पूरा हम लोग भी गर्दा मचाए हुए थे, है ना। तो फिजियोथेरेपी आज के दिन मनाया जा रहा है और हमारे संस्थान में मनाया जा रहा है। इसके ये जान के तो मुझे अपार खुशी हो रही है। और इसके बारे में मैं 2 लाइन कहूंगा कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। वाह वाह करना था यहाँ पे, मिस कर दिया। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, सुना दिया है क्या? हाँ, थक गया क्या वाह वाह करते हुए? चलो ठीक है। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और चिकित्सा में कोई सारा का सारा कैसे हो सकता है? कोई नहीं, गलत जगह ताली बजी। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, चिकित्सा में कोई सारा का सारा कैसे हो सकता है, और जिसके बगैर हम 2 कदम सही से चल नहीं सकते, उसके बगैर गुजारा कैसे हो सकता है? वो है हमारा फिजियोथेरेपी। और सही मायने में देखा जाए तो ये ऐसा विभाग है जो बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी मेडिसिन के रोगियों को कंप्लीटली 100% सही किया है। और आज हम लोग उसी का दिवस मना रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है। और एक बात और है जो आप लोग सुनना चाहते हैं, मेन मुद्दा तो मैं अब सुना रहा हूं। दुनिया, सूरज बहुत तेजी से ढल रहा है। ये एक व्यंग है आज के जमाने पे। सूरज बहुत तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। जो कर रहे हो ना बाद में करना। हाँ, थोड़ा सा। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत महात्मा टीवी पे प्रवचन दे रहे थे कि अगर माया मोह से दूर रहना है तो मुझे लाइक कीजिए, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये लाइक और सब्सक्राइब सब आजकल होना चाहता है। साधु हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, सब वायरल होना चाहता है। जो आज का जमाना चल रहा है, इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है। सच कहूं तो बहुत बुरा हाल कर दिया है। अभी भी हम उसी का सहारा ले रहे हैं। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है। सच कहूं तो बहुत बुरा हाल कर दिया है। पहले बच्चे बाहर जाके खेलते थे तो घर वाले घबराते थे। जब बच्चा समय पर नहीं आता था तो पिता पड़ोस में पूछने चला जाता था, और बच्चा जब खेल कर आता था, पैर में चोट लगी रहती थी, लड़खड़ाता था, तो 2 पंक्तियां अगर आपको लगे कि हाँ ये ऐसा कभी होता था, तब ताली बजाना। कि पैर में चोट लगी रहती थी
लड़खड़ाता था, ना कोई मंत्र पढ़ती थी। अनपढ़ मां ना कोई मंत्र पढ़ती थी, ना कोई दवा देती थी, और 2 फूंक मारती थी और दर्द को उड़ा देती थी। था ना? लेकिन आज वो नहीं रहा। आज क्या हो रहा है? वही मां, क्योंकि पहले मोबाइल इतना नहीं था। हाँ, आपके जमाने में था मोबाइल, लेकिन इतना नहीं था। अभी बता रहे हैं अगर यही चलता रहे तो एक भी लड़का सीधा नहीं होगा, टेढ़ा हो जाएगा, सर्वाइकल सी के आकार का हो जाएगा। आज बाजार में बहुत सारे ऐसे केस भी आ रहे हैं आदित्य, जिसका सर्वाइकल टेढ़ा है, एकदम सीधा होना चाहिए था, वो ऐसे झुका हुआ है मोबाइल की वजह से, है ना? और मोबाइल हमें क्या क्या दे रहा है और क्या क्या हमसे ले रहा है, ये भी सुनिएगा। लेकिन वही मां आज परेशान है, लाचार है। आवाज पीछे तक जा रही है क्या? तो रवि इस बात क्यों कर रहा है? तो लेकिन वही मां आज परेशान है, लाचार है, क्योंकि खुद के ऊपर उसका कोई बस नहीं चल रहा है। खुद के ऊपर उसका बस नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके आंखों के सामने ही मोबाइल उसके बच्चे को निगल रहा है। उसके आंखों के सामने ही मोबाइल उसके बच्चे को निगल रहा है। न वो चिल्ला रही है, न किसी को बुला रही है। इस घटना ने उसे परेशान करके रख दिया है। इस घटना ने उसे परेशान कर दिया है। अभी उसने अपने बच्चे का बचपन देखा ही नहीं कि मोबाइल ने उसके बच्चे को जवान कर दिया है। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने, इसके भीतर के फेसबुक, ट्विटर, फलाना ठिकाना चिमकाना, है ना, लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मन का रोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है। गौर फरमाइएगा एक एक लाइन पे, एक एक शब्द पे। इसने हमारा सुकून छीना है, हमारा संस्कार छीना है। घर में बैठकर एक साथ बतियाने वाला परिवार छीना है। और सुनिए, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। आजकल नई किताब कोई खरीद नहीं रहा है, मोबाइल में है, पलटे जा रहा है। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीना है बिटिया के शादी के निमंत्रण पत्र में लगे हुए हल्दी के गंध को। अब नहीं मिलता, मोबाइल पे ही आएगा मैसेज, आपको सादर आमंत्रित किया जाता है। दुनिया ने इसे हमारे बीच कुछ ऐसा परोसा है, ध्यान देना, दुनिया ने इसे हमारे बीच कुछ ऐसा परोसा है कि हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। अभी हम क्लास ले रहे होते हैं, तब तक बच्चा सर्च मार रहा होता है। भाई, हर वो चीज जो गूगल पे दिखा रहा है सही नहीं है, क्योंकि गूगल से बहुत आगे है गुरु। अभी कुछ दिन पहले हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे शिक्षक दिवस, है ना, टीचर्स डे सेलिब्रेट किए थे ना। आपका उस सेलिब्रेशन का क्या मतलब, जबकि आपको गुरु पे भरोसा ही नहीं है, आपको तो गूगल पे भरोसा है। गूगल हर वो बात जो कहता है सही नहीं होता, विश्वास नहीं होता, तो अपने गूगल से पूछ के देखिए, हु इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिमिनल ऑफ द वर्ल्ड। आप गूगल से पूछ के देखिए, नरेंद्र मोदी बताएगा,
देख लो, हर बात सही नहीं बताता है गूगल। गुरु जो वर्ड है ना, हमारे निर्देशक प्रमुख वहां के IHR के बोल रहे थे कि गुरु जो वर्ड है वो संस्कृत से बना हुआ है। इसमें दो वर्ड है, गु और रू। पता है, दो वर्ड से बना हुआ है, गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। संस्कृत वर्ड है ये। हाँ, तू सर्च मारना, बाद में मारना सर्च, है ना। गुरु कौन होता है? गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। इस पे भरोसा करना है ना, गूगल से ज्यादा। जिस दिन गूगल से ज्यादा गुरु पे भरोसा होने लगे तो समझ जाओ कि सच में हमारा जो है देश एक बार फिर से विश्व गुरु हो सकता है। हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था। अब ये तुम्हारे ऊपर है, न्यू जनरेशन के ऊपर है कि हमारे देश चांद तक पहुंच गए हम लोग। अभी देखिए, कुछ ऐसा लोग बयान देते हैं आजकल, पागल लोग, कि हम चांद की पूजा करते हैं और मोदी जी वहां पोटी करवा रहे हैं। जितना बुद्धि उतना लोग बोलते हैं हम चांद पे पहुंच गए। सूरज और आदित्य, ध्यान देना, चंद्रयान सक्सेस हुआ, चांद नहीं रहा, और आदित्ययान भी लॉन्च हुआ। थोड़ा संभल के चलना होगा। तो सब न्यू पीढ़ी के ऊपर डिपेंड करता है। और आप लोग अगर सब कुछ अच्छे से करेंगे तो क्या हो सकता है, हम बता दे रहे हैं कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को। आखिरी पंक्ति है, फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावा नल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इंकलाब के नारों को। अरे तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। वेस्ट हो गया आपका ताली भी, आगे और है। तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को, तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है। अरे तुम चाहो तो राम राज का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी को। आज फिजियोथेरेपी दिवस के शुभ अवसर पे मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सॉरी। सोच रहा बोला। हाँ, अभी क्लास होगा। क्लास रुक ना अभी। Now let's have cake cutting ceremony. I would like to call Chairman Sir, HOD Hall Department Santosh Sir, Samhar Sir, Singh Sir. Sir, please come over and let's get the ceremony. वो सब नहीं लाया है मोमबत्ती क्या है? ऐसे ही ठीक है। कितना साल का हुआ ये नहीं पता है ना। बहुत सारा बहुत उठना है, सबको उठना है। कैमरामैन फोटो साफ लेना, टीचर का फोटो साफ नहीं आया। तुम लोग बैठो तू लोग बैठ जा बेटा, बैठ जा। आप आपके हाथ में लगे। आदित्य काटेगा। आदित्य आ जाओ। आदित्य
अरे तुम काटो, तुम चलिए काटिए। चालू हो जाते हो। यहाँ पे निकाल के अब हाथ लगाना पड़ेगा आदित्य, हाथ लगाना पड़ेगा। ये आदित्य नहीं, ठीक है, हम ले लिए। जाइए सर। Now I would like to person who is doing बैठिए, hard work for all of us. बाप रे बाप। Chairman of our college, Mr. Sujit sir, sir please state for your आशीर्वाद आपका चाहिए ऐसा। सर का आशीर्वाद मिल जाए वही काफी है सर। हमारे जितने भी गुरुजन हैं, सबसे पहले उनको फिजियोथेरेपी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे बच्चों को भी आप लोग इसी तरह आगे बढ़िए और जो भी डे सेलिब्रेशन करना है अपने अपने डिपार्टमेंट का, बस हमें बताइए, हम आपके साथ हैं, हम आपके आगे खड़े रहेंगे। और इस तरह का सेलिब्रेशन ताकि आपको अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में अवेयरनेस कराने के लिए हम करवा सकें। धन्यवाद। लोटो चोको पाई। Like time to award distribution. I would like to call chairman and HOD for our department sir please and award awarded to the participants. First position goes to Miss Akanksha. Akanksha welcome to the stage. आदित्य से दादा, आदित्य Cameraman. कैमरामैन। Second position goes to Miss Anupriya. We have one more second position, Mr. Ved Prakash. वेद प्रकाश के लिए कम ताली बजा। Mr. Rohit goes to third position. And one more first position. Yourself. Now, I'd like to request, please get ready to go. हाँ, वहाँ 2 गो तो मंत्री आ रहा है और हाँ, और फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के जो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट हैं वो आ रहे हैं, वो राम कृपाल यादव आ रहे हैं।
बड़ी टेंशन। हाँ सही बात। स्कूल कैसा चल रहा है? स्कूल में भी ध्यान नहीं दिया है, नहीं दिया है उसमें।